Very good afternoon to everyone. I have great pleasure to welcome our chief guest, Sri Pasupati Kumar Paras, Honorable Minister for Food Processing Industry, Government of India, to this special session on developing India as a global sourcing hub for food processing. This is a part of our ongoing week-long virtual meet on global value chain, backward and forward integration. We are indeed grateful to you, sir, for accepting our request to be with us as a chief guest at this important discussion today. I also welcome Sri Anil Rajput, Chairman of FMCG Council ASSOCHAM and Senior Vice President Corporate Affairs ITC Limited. Sri Himanshu Priyadarshi, Senior Member ASSOCHAM and Director Public Policy and Government Affairs PepsiCo. And Sri Vivek Chandra, Co-Chairman of National Food Processing Council and ASSOCHAM and CEO of Global Business at L&T Foods. Dr. O.S. Tyagi, Vice President UPL Limited. I also welcome all the participants to this session. Sir, as we all know, food processing industry is the sunrise industry which has potential to grow to optimizing high output farming sector. The government of India has announced various schemes for promotion of this sector, and we are very glad to have the Honorable Minister to share his vision on this subject. So once again, I welcome everyone, and may I now request Mr. Vivek Chandra to kindly moderate the session. Thank you. Mr. Chandra, please. Thank you, Mr. Rajora, for the kind words and for the introduction. Let me also add to your welcome, the welcome on behalf of ASSOCHAM and our committees on food processing and FMCG to the Honorable Minister. बहुत बहुत स्वागत है आपका. मंत्री जी, हम लोग हमारे यहाँ पर बहुत ही वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं जो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे. इंडिया एग्री एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ग्लोबल वैल्यू चेन में जोड़ा जाए और बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर. तो शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अनिल राजपूत जी को, जो चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑन एफएमसीजी हैं और सीनियर वीपी कॉर्पोरेट अफेयर्स आईटीसी हैं. राजपूत जी, प्लीज आप शुरू करें अपने थॉट्स एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स विद अस. Thank you very much. Good afternoon to everyone. Today's virtual session, Creating Value Proposition for Food Processing, has a very special reference to Indian food processing industry. I would suggest that we could actually have Dr. Ombir Tyagi speak to us, and then when Mr. Rajput joins back, then we can have his comments after that. If that's okay, then we can have Dr. Ombir Tyagi, please. Senior Vice President, UPL Limited. Tyagi ji, please, why don't you start, and then we can have Mr. Rajput. थैंक यू चंद्र साहब, विवेक चंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आदरणीय मंत्री जी, फेलो पैनलिस्ट एंड ऑडियंसेस, मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि मुझे आज आपके साथ, सभी के साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है. मैं यूपीएल में कार्यरत हूँ. यूपीएल एक एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में काम करती है. भारत की संभवतः सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व में इसका 5वां नंबर है. हमारे उत्पाद आपका बीज से लेके और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग तक के सभी पूरे जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है उसको हम लोग संबोधित करते हैं. हम लोग सभी जानते हैं कि इस कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण का भारत में एक महत्वपूर्ण विषय है. भारत एक महत्वपूर्ण विषय है. ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर आधारित है और लोगों का रोजगार कृषि से ही चलता है, लगभग आधी जनसंख्या का. और खाद्य प्रसंस्करण एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें असीम संभावनाएं हैं रोजगार पैदा करने की, और रोजगार भी ग्रामीण अंचल में पैदा करने की. और ये भी हमारे लिए एक हर्ष का विषय है कि इस कोरोना काल में भी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 38 से 40% के हिसाब से बढ़ा है इस साल में.
जो एक हर्ष का विषय है और जो एक हम लोगों को संभावना देता है कि आने वाले समय में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में भारत जो है एक अभूतपूर्व जगह विश्व फूड वैल्यू चेन में प्राप्त करने वाला है और एक महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे उभर रहा है। 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं। आज एक सूचना का युग है। वी ऑल डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण भी इससे अछूते नहीं है। इस दोनों क्षेत्र में भी सूचना एक महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती है, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण में है, चाहे वो एक किसानों को सही समय पर सही सूचना उपलब्ध कराना है ताकि वो अपने उत्पादों का उसी के अनुसार उत्पादन कर सकें। और क्या ऐसा एक मंच बन सकता है या एक साझा हो सकता है कि जहां जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो सरकारें हैं वो आपस में अपनी जो सूचना है उसका आदान प्रदान करें, सूचनाएं साझा करें, और जिसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिले, किसानों को भी मिले, और जो बीच में लोग काम करते हैं कृषि प्रसंस्करण का, उन लोगों को भी मिले। कृषि मंत्रालय ने ऐसी कुछ इनिशिएटिव्स आरंभ किए हैं, यानी कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ MOU साइन किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अकेले कृषि मंत्रालय इस काम को नहीं कर सकता है जब तक जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है वो उससे वंचित रहेगा, और जो सूचनाएं वास्तव में आदान प्रदान होनी चाहिए वो आदान प्रदान नहीं होगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये एक संयुक्त जो स्टेप होना चाहिए, एक संयुक्त इनिशिएटिव होना चाहिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का, कि एक सूचना का एक तंत्र हम लोग तैयार करें जहां पे हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करें। दूसरा विषय जो मैं आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ, ऑडियंस से भी साझा करना चाहता हूँ कि अब तक हम लोग ये नारा देते रहे हैं कि फार्म टू फोक, यानी कि किसान के खेत से लेकर और उपभोक्ता की प्लेट तक। लेकिन हमको ये मानना होगा कि जो भारत की इकोनॉमी है ये एक बाजारू इकोनॉमी है, और बाजारू इकोनॉमी में प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक नहीं लिंक जाता, बल्कि लिंक जो है कंज्यूमर से शुरुआत होकर और प्रोडक्शन तक आता है, ताकि उत्पादन उन्हीं चीजों का हो जिनकी बाजार में मांग है। इस विषय को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो नारा हम लोग अब तक कहते रहे हैं फार्म टू फोक, ये होना चाहिए आप तो फोक टू फार्म। किसान उन्हीं चीजों का उत्पादन करे जिनकी बाजार में मांग है। प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन की जो सुविधाएं कृषि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कर रही है वो उन्हीं चीजों की करे जिनकी बाजार में मांग है। और ये जो लिंक है इसमें जो फूड वैल्यू चेन जिसका हम लोग आज जिस विषय पे हम लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं, फूड वैल्यू चेन का मतलब है कि जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। और जो बात मैंने पहले कही, सूचना का आदान प्रदान और जो ये आपका फार्म टू फोक टू फार्म है, इन दोनों का अगर हम मिला के देखें तो किसान आपका प्रसंस्करण और उपभोक्ता, इन तीनों में एक साझा मंच बने और किसानों को फायदा हो, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को, जो उद्योग हैं उनको फायदा हो, और इस तरह से एक इकोनॉमी में हम लोग अपना योगदान दे सकें। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं एसोचैम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। आदरणीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर त्यागी। बहुत ही आपने अच्छे तरीके से सरल लेकिन बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये कहीं नोट करके इनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं अब आग्रह करूंगा श्री हिमांशु प्रियदर्शी से, जो सीनियर मेंबर हैं एसोचैम के और डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स हैं पेप्सिको के, कि वो
अपने विचार हमारे साथ में शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार तो सबको और नमस्कार मंत्री जी को। मैं एक बार फिर इस सत्र के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का स्वागत करता हूं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें और विकास की अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते वैल्यू चेन तैयार करने के लिए अनुकूल कार्रवाई की जा रही है। मैं एक आरबीआई का रिपोर्ट देख रहा था सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट के आधार पे भारत कच्चे माल के स्तर पर कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन उसमें से केवल 10% से भी कम पर प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग हो रही है। सो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कृषि उत्पादन में मूल्य जोड़ने, निर्यात में सुधार लाने, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा करने की क्षमता है। चूंकि पूंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण संस्थाओं की एम्प्लॉयमेंट देखी जाए तो वो सृजित कुल जो जितने रोजगार होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का, उसका 11.4% है जो एम्प्लॉयमेंट फूड प्रोसेसिंग अलोन कंट्रीब्यूट करता है। अब हम ग्लोबल फूड सप्लाई के बारे में अगर बात करते हैं तो सब लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है रैपिड ग्रोथ पे, और इसके कारण फूड सप्लाई में भी मैसिव स्ट्रेन आ रही है। फूड मार्केट अराउंड द वर्ल्ड पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में होती थी, पर वाइड स्प्रेड अभी हर एक इकोनॉमी में फूड प्रोसेसिंग और फूड कंजम्पशन का चल रहा है। और इसका हाल ही में देखा है हमने कि मध्यम वर्ग की वृद्धि के कारण जो मिडिल क्लास का इनकम, राइजिंग इनकम हुआ है, और जितना औद्योगिकरण और शहरीकरण हो रहा है, वो सब एक एक कारण है इसको बढ़वाने के लिए। तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला खाद्य उत्पादन की संसाधन तीव्रता है, मतलब बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है सर। दूसरी पॉइंट हम बोलेंगे कंजम्पशन पैटर्न पे। अगर खपत पैटर्न की देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि फूड कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हायर इनकम, अर्बनाइजेशन के कारण, डेमोग्राफिक शिफ्ट के कारण, कि लोग अब कन्वीनियंस फूड, क्वालिटी एंड सेफ्टी फूड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं। और जो चैनल्स है मार्केटिंग का वो भी चेंज हो रहा है, ई कॉमर्स आ रहा है। आज मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि इकोनॉमिक टाइम्स में कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी गाँव की तरफ जा रहे हैं, रूरल की तरफ जा रहे हैं, और एक खपत पैटर्न को चेंज कर रहा है पूरे शिफ्ट को गांव की तरह रूरल की तरफ। तो हमारा मार्केट बढ़ते जा रहा है, मार्केट का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। तीसरी बात करते हैं वैल्यू चेन की। तो वैल्यू चेन के मिक्स में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोअर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसर इन्वॉल्व होते हैं, जो सेलर होते हैं वो होते हैं, फ्रॉम फार्म टू टेबल जो त्यागी जी भी बता रहे थे। एंड कोलैबोरेशन इनके बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंटरडिपेंडेंसी जो इनकी होती है ये बहुत मायने रहती है, बिकॉज फूड ट्रेसेबिलिटी एंड फूड सेफ्टी एक वन ऑफ द कंसर्न है ग्लोबल के लिए भी। एंड देन फॉर्चुनेटली इंडिया बहुत काम कर रहा है उसमें, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं फूड सेफ्टी एंड ट्रेसेबिलिटी के लिए। और फूड सेफ्टी को और बढ़ावा देने की बात है, बिकॉज अनब्रांडेड और अनपैकेज्ड के कारण भी हम लोगों को फूड सेफ्टी में हल्की इश्यू आ रही है जो ब्रांडेड पैकेज्ड होते हैं। सो वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का हाई प्रोफाइल जो खाद्य हमारा है, वो खाद्य सुरक्षा और पता लगाने की क्षमता एक बड़ी चिंता का विषय है। एंड प्रत्येक हितधारक को भोजन की सोर्सिंग और हैंडलिंग, उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। उसी के आगे में सर नॉलेज और डाटा शेयरिंग की भी एक अपनी अलग महत्ता है। जो नॉलेज और डाटा शेयरिंग से पूरे इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है और एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो ग्रेटर वर्टिकल इंटीग्रेशन क्रिएट करता है। और अब आते हैं सर कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके कारण प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज डिमांड के कारण बहुत बढ़ेगी। और उसमें हम अगर बात करते हैं तो सर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने बहुत काम किया है इंडिया में, टू मेक इट मैकेनाइज्ड एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। एंड फॉर्चुनेटली फूड एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स पे भी हो रहा है। मेक इन इंडिया में भी फूड प्रोसेसिंग को एक मेजर सेक्टर माना गया था इन मेक इन इंडिया, और उसके वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत सारे स्कीम्स आए। आपने भी कहीं कहीं वक्तव्य दिया है कि हम लोग एमएसएमई को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और एमएसएमई के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के पहल के करने के लिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को समर्थन दे रहे हैं। बट सर उस इतने अपॉर्चुनिटी और डिमांड को देखते हुए और प्रोडक्टिविटी चूंकि इंक्रीज करनी है कंपनी को, तो कुछ और मदद की आवश्यकता है। जो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हेल्प करे इंडस्ट्रीज को फर्दर ग्रो करने के लिए, तो उसमें सर हम बोलते हैं कि
आज के तारीख में हम देखते हैं तो जो पैकेज फूड प्रोडक्ट्स है, पैकेज जो खाद्य पदार्थ है, उसको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत है, क्योंकि पोस्ट कोविड हमने देखा है कि कंज्यूमर्स का जो पैटर्न है वो वन ब्रांडेड की तुलना में प्रोसेस्ड और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि आई है। लोग अब सेफ और हेल्दी फूड देख रहे हैं, पर पैकेज फूड पर 12% जीएसटी ब्रैकेट का हिस्सा है, जो कहीं वर्ल्ड में किसी भी कंट्री पे 12% नहीं होता है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर हम ग्लोबल चेन वैल्यू चेन की बात करें जिसमें हम ग्लोबल करें, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पाता है। उसमें एक कार्रवाई की जरूरत है सर, जिसमें कि 12% जीएसटी ब्रैकेट को देखा जाए कि फूड को फूड ट्रीट किया जाए, जो कॉमन फूड हो रहा है, लोगों के यूज में जा रहा है, उसमें जीएसटी रेट इतना हाई नहीं होना चाहिए, बल्कि और कम होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादनों की खरीद में गिरावट आई और आलू, कॉर्न, ये सब जो प्रोक्योरमेंट होती है, जो किसान जुड़े हुए हैं, जो अंततः स्थानीय किसानों को प्रभावित करेगा। सो एक टैक्स रेशनलाइजेशन के मोड में कुछ काम किया जाए सर, जो बहुत सारे खिलाड़ियों को निवेश करने के लिए उत्साहित करेगा और उनको लाएगा। और उदाहरण के लिए कुपोषण से लड़ने और सरकार के जो समग्र पोषण अभियान है, उसको संबोधित करने के लिए भी पेश किए गए ब्रांडेड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को भी हेल्प करेगा और जीएसटी के कारण। इन शब्दों के साथ मैं अपने उद्योग के सहयोगियों को इस विषय को और विस्तृत करने के लिए आमंत्रित करूंगा और मुझे आशा है कि यह सत्र अधिक उद्योग अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और सभी प्रतिभागियों के लिए ज्ञान प्रदान करने वाला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियदर्शी जी। मैं देख रहा हूँ कि राजपूत जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ उनको कि वो भी अपने विचार यहाँ पर हम सब लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें। नमस्कार सर, नमस्कार सारे जिन्होंने हमारे को आज ज्वाइन किया है, उद्योगपतियों ने, मंत्री जी ने और पार्टिसिपेंट्स ने। ये वर्चुअल सेशन में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। मेरा सच अभिनंदन जी ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। फूड प्रोसेसिंग हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं और कृषि प्रधान देश होने के लिए इसका कनेक्शन मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी है, क्योंकि जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सामने आता है तो वो जितना भी कृषि के उत्पादन है उनको प्रोसेस करता है और फिर वो प्रोसेस करके कंज्यूमर को दिया जाता है। तो सर्विस सेक्टर भी सामने आ जाता है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जितना भी डिलीवरी मैकेनिज्म है ई कॉमर्स के थ्रू, उसमें सर्विस सेक्टर भी साथ आ गया है। तो ये एक यूनिक सेक्टर बन गया है मंत्री जी, जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और रिटेल सेक्टर सारे के सारे जो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, मिलके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और ज़रूरत है हमको इसको अच्छी तरह से बढ़ावा देने की, और ये बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हिंदुस्तान में बाकी देशों की तुलना में सिर्फ 10% फूड प्रोसेस होता है और हमारे देश में इस वक्त 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फूड की वेस्टेज हो जाती है। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अगर बढ़ावा मिलेगा तो इसमें वेस्टेज बहुत कम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो प्रोसेस ही नहीं हो पाती और कंज्यूमर तक पहुंच भी नहीं पाती, उससे पहले ही किसान के पास ही वो बेकार हो जाती हैं और किसान को बहुत उससे नुकसान होता है। अब देश की किसान को पूरी कीमत मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेसिंग सेक्टर की इस देश में अच्छे तरह से इम्प्रूवमेंट हो और इंक्रीज हो। परंतु इस सेक्टर बजाय के बढ़ने के, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं और वहाँ पे हमें इंडस्ट्री की तरफ से आपकी बहुत मदद की ज़रूरत है। फूड प्रोसेसिंग आपकी मंत्री
मंत्रालय बहुत कोशिश कर रहा है कि इसको बढ़ावा मिले। आपने प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम भी अभी घोषणा करने की जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसमें ऐसे ऐसे रेगुलेशन आ रहे हैं जिससे आप हाइजीनिक फूड कंप्लायंट इंडस्ट्री के लिए काम करना बहुत मुश्किल होने वाला है आगे जाके, क्योंकि हिंदुस्तान में वो सारे कानून नहीं बन सकते जो सीधे वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दिए जाए, क्योंकि वो सारे देश डेवलप्ड हैं। वहाँ पे 50% फूड जो है प्रोसेस होता है, 70-80% वहाँ के लोग जो लोकल हैं वो प्रोसेस फूड खाते हैं। हमारी इंडस्ट्री तो अभी 10% प्रोसेस कर रही है। अगर इसमें उस तरह के सारे कानून लाए जाएंगे तो ये कभी बढ़ेगी नहीं इंडस्ट्री, ये छोटी की छोटी रहेगी, क्योंकि लोग हिंदुस्तान में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही रहेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए वो वेल कैलिब्रेटेड हो और उससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाइजीनिक प्रोडक्ट पैकेज करके देश के अंदर लोगों तक पहुंचा सकें, ये हमारी एक एफर्ट होनी चाहिए। पर अभी जैसा चल रहा है उससे मेरे को लगता है कि बड़ा मुश्किल होने वाला है सारी प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए। तो हमारी आपसे विनती है कि आप इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम ऐसी नीतियां बनाएं जिससे इस सारे सेक्टर में बढ़ावा मिले। अगर सेक्टर ही नहीं होगा, सेक्टर हमेशा छोटा रहेगा, अनऑर्गेनाइज में ही रहेगा, लोग ब्रांडेड सामान बना ही नहीं पाएंगे और बेच ही नहीं पाएंगे, चाहे उसकी पैकेजिंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाए, चाहे उसमें लोगों को डरा दिया जाए पैकेज सामान खाने के लिए, चाहे लोगों को टैक्स लगा दिया जाए जिससे ये इंडस्ट्री छोटी रहेगी। ये सब चीजें एक होलिस्टिक तरीके से देखनी चाहिए, क्योंकि इसके सब बेनिफिट जो हैं हर 3 जो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर हैं सबको मिलने वाला है। जॉब्स बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं। हिंदुस्तान का 14वां नंबर है दुनिया में एक्सपोर्ट का, और जितना बढ़िया हमारे देश में फूड का सेक्टर ग्रो कर सकता है, दुनिया में कोई भी कंट्री इतनी बढ़िया उन्नति नहीं कर सकती है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप इटली का खाना सारी दुनिया में मशहूर है, और अगर आप इटालियन डिशेस देखेंगे तो 8-10 डिशेस होती हैं उनकी। फ्रेंच खाना दुनिया भर में मशहूर है, और अगर फ्रेंच खाना आप देखेंगे तो वो भी उसमें भी 8-10 डिशेस हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट का खाना, बिहार का खाना एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, उसको आप एक दुनिया में प्रस्तुत कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया का खाना, पंजाब का खाना बिल्कुल अलग है, राजस्थान का खाना बिल्कुल अलग है, नीचे साउथ इंडिया का खाना बिल्कुल अलग है। तो हमारे पास सारे देश में इतनी सारी वैरायटी है जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, और अगर हम इसको प्रॉपरली पैकेज करके सारी दुनिया के अंदर प्रस्तुत करेंगे तो हम बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। उससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा हो सकता है, हमारे पास इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर सकती है, और कंज्यूमर, हिंदुस्तान का कंज्यूमर भी बेनिफिट कर सकता है और दुनिया का कंज्यूमर भी बेनिफिट कर सकता है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इन सब मुद्दों पर ध्यान दीजिए ताकि सारी इंडस्ट्री बढ़ सके और सारे देश में इसका अच्छे तरीके से फायदा मिल सके सब लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजपूत जी, थैंक यू। सारे पॉइंट्स जो हैं अलग भी हैं और एक तरह से जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री की जो एक मांग है इस सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए,
वो सुन रहे हैं हमारे राजपूत जी ने जो अभी पॉइंट्स कहे और प्रियदर्शी जी ने जो यहाँ पर इसकी थीम सेटिंग में जो बातें हमसे कही, उसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। और इसके पहले मैं यहाँ पर सबका धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने इतना अपना वक्त इसमें सोच में दिया हमको, और खास तौर से मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, वो ये हमें वक्त दे रहे हैं। इन्हीं थॉट्स को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कुछ सुझाव और कुछ शब्द कहना चाहूंगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और उसे ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू चेन की हम बात कर रहे हैं, इसमें सरकार ने कई पॉलिसीज बनाई हैं। एक पूरा विजन और एक्शन डॉक्यूमेंट हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी से मिलता है। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में एफपीओ और किसानों को उनके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की कमाई में भागीदार बनाने में काफी प्रोग्रेस हुई है। और जहां एफपीओ और किसान का इसके फार्म इनकम में इंप्रूवमेंट हुआ है, उसी के साथ उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी बेहतर हुई हैं, क्योंकि वो जो उत्पादन है उनको एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना था। भारत सरकार जो है वो निरंतर और काफी फोकस्ड ये कदम उठा रही है कि किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। कोविड के दौरान भी सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया जो सराहनीय है। कई इस तरह के कदम उठाए गए, जैसे कि सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशंस जो लोगों के एक्सपायर हो गए थे उन्हें एक्सटेंड किया गया। एक्सपोर्टर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कंट्रोल रूम सेटअप किए गए। EIC, NPPO और इस तरह की अलग जो बोर्ड्स और अथॉरिटीज हैं उन्होंने सहयोग दिए, ऑनलाइन एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन जारी किए, और फलस्वरूप जो इंडियन इसेंशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है वो अप्रैल 2000 से जनवरी 2021 तक 38% से बढ़ा। स्टेट्स का इसमें एक्सपोर्ट पॉलिसी में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ही जरूरी था, और रेगुलर इंटरैक्शंस करके ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को स्टेट की एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक अहम हिस्सा बनाने में बहुत ही रोल प्ले करा है मंत्रालय ने। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म करे गए जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, ये सब स्टेट्स में पहली बार ये सब सेटअप हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो कम अप विद वेरियस स्कीम्स लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, PLI। ये सब जो है एक दिशा देगा इंडियन एग्री एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट में आगे आने का, बढ़ने का। पर एक निरंतर ग्रोथ जो कि अपने आप ही चले, अपने आप ही बढ़ती रहे, उसकी अगर हम बात करी जाए तो कुछ विषयों पर मैं अनुरोध करूंगा कि विचार किया जाए। प्रोसेस्ड फूड जो है उसके ऊपर जो सेफ्टी, क्वालिटी और हेल्थ को लेकर काफी रेगुलेशन है दुनिया में, क्योंकि ये सीधा जो है प्रोसेस्ड फूड वो खाया जाता है, और ये रेगुलेशन इंडिया में भी आ रहा है। इसका एक पहलू राजपूत जी ने बताया कि सीधे सीधे अगर हम बाहर के मापदंड यहाँ पर ले आएंगे तो वो यहाँ के लिए सही नहीं है। एक और मुद्दा है कि आज हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, एजेंसीज हैं, वो अलग अलग काम करती हैं ये रेगुलेशन बनाने के लिए, और कई बार जो ये रेगुलेशन आता है वो एक्सपोर्ट के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए वो हानिकारक है। एक रेगुलेशन बन जाता है, लेकिन क्या वो जो है उसमें कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का इनपुट है? मिसाल के तौर पे आजकल MRL जो है वो हर प्रोडक्ट, एग्री प्रोडक्ट, चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे डेयरी है, सब में आ रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये सारी, ये जो चावल है या गेहूं है, ये सिर्फ खरीद के प्रोसेस करते हैं, ये उगाते नहीं है। वो अगर इसमें हमें कंप्लायंस चाहिए तो वो किसान को करना है, और वो एग्रोकेमिकल कंपनीज का काम है, और ये अलग मंत्रालय हैं। तो एक ऐसा हर बार यही बात आ रही है, एक प्लेटफॉर्म जिसमें सब लोग साथ आए, जिसमें कि एक
कंस्ट्रक्टिव वे में सारी चीजें करी जाएं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कानून आ रहे हैं कि अगर वो दुनिया के बाकी देश अडॉप्ट कर लें कि हिंदुस्तान जहां ये उगरा है आप ये कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक्सपोर्ट में डेंट आएगा। सो हम कैसे मीनिंगफुली रेगुलेशन सर्वसम्मति से, सर्व इनपुट से बनाएं, इसके विचार करना हमको बहुत जरूरी है, और एसोचैम इसमें पूरा सहयोग देने के लिए, शामिल होने के लिए तैयार है। हमारा एक फोकस है लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई पे। हमारी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इनके लिए आती हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम अभी जो बात कर रहे थे कि जिस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हमें एक्सपोर्ट में देने हैं, अगर वो पूरे रिक्वायरमेंट्स हमको मीट करने हैं, तो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में लगेगा, वो कंपनी को निश्चित तौर से एमएसएमई के ऊपर ही ले जाएगा। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ एमएसएमई नहीं, लेकिन सब फूड एक्सपोर्ट कंपनीज को स्कीम लागू होनी चाहिए। जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स हिंदुस्तान का, वो सब देश जिनसे हम कंपीट कर रहे हैं ज्यादा है, इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम बहुत जरूरी है बड़े उद्योगों के लिए ही, ना सिर्फ एमएसएमईज के लिए। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे, वो समटाइम्स उनमें टैरिफ बैरियर लगता है और समटाइम्स नॉन टैरिफ बैरियर्स इन रेगुलेशन के माध्यम से लगाया जाता है। एडवोकेसी अराउंड ये बाइलैटरल जो चैलेंजेस हैं, कुछ देश हैं जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स है और हमारे कंपीटिंग देशों पे नहीं है। ये जितने बाइलैटरल चैलेंजेस हैं, इसमें हमारे मिशंस का बहुत बड़ा रोल है, और उनको इसमें उनको एक तरह से अवेयर करके एक प्रायोरिटी बना के उनको ये लेना होगा कि कैसे ये जो डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, उनको कैसे हटाया जाए। हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम निकाली। ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, पर इसका सेकंड फेज में, क्योंकि फर्स्ट फेज तो अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। आज जो है आरटीई, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक जो है, ये फ्यूचर है, और ये बहुत ही एक खूबसूरत सा एक कैटेगरी है जो कि फार्म गेट से लेके पूरा कंजम्पशन जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो पूरा कवर करती है। जो बात हो रही थी फूड वेस्टेज की, फूड प्रोसेसिंग की, वो ये आरटीई और आरटीसी जो है, इसमें बहुत ही ज्यादा इसका योगदान होगा। लेकिन आज जो है पीएलआई स्कीम जो है, इसमें इसको क्लब करा गया है कुछ बहुत ही पुरानी कैटेगरीज से जो बहुत बड़ी हैं, जिनका की केपेक्स रिक्वायरमेंट आरटीई आरटीसी से बहुत ज्यादा होता है। तो पीएलआई कैटेगरी 1 में इनका आना मेरे हिसाब से बहुत कठिन होगा, क्योंकि इनकी तुलना उन बड़े इन्वेस्टमेंट से होगी। एंड आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और मेरा तो ये भी सुझाव है कि हम एकदम से ग्लोबल मार्केट में हम एकदम से कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज हमारा ग्लोबल मार्केट में पैकेज फूड में बहुत कम शेयर है, सिंगल डिजिट्स में है। तो एक एक्सपर्टीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी इंडियन मार्केट में, और आज इंडिया का रिटेल एनवायरनमेंट जिसकी कई बात हो रही है, वो अवेलेबल है जिसमें कि हम ये कर सकते हैं। तो किस तरह से ये स्कीम को किसी हद तक इंडिया की सेल के ऊपर भी कवर करा जाए, इस पे भी थोड़ा विचार करा जा सकता है। आदरणीय मंत्री जी, से ज्यादा और मैं समय ना लेते हुए यही कहूंगा कि जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो विजन है, वो हमको बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मिनिस्ट्री से जो स्कीम्स और इंसेंटिव्स आए हैं, उसका भी बहुत सपोर्ट है, लेकिन ये जो कुछ एक जो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, अगर इस पे विचार किया जाए तो ये सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है। और अब मैं मंत्री जी श्री पशुपति कुमार पारस जी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो हमें संबोधित करें और अपने विचार हमारे समक्ष रखें और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।
श्री DS रजौड़ा जी, सहायक महानिदेशक एसोचैम, श्री अनिल राजपूत जी, अध्यक्ष नेशनल काउंसिल ऑन FMCG, श्री नितिन सेठ जी, सह अध्यक्ष एसोचैम क्वालिटी एंड प्रोडक्ट काउंसिल, श्री हिमांशु प्रियदर्शी जी, वरिष्ठ सदस्य एसोचैम, और श्री विवेक चंद्र जी, सह अध्यक्ष नेशनल फूड प्रोसेसिंग काउंसिल एसोचैम। सभी उपस्थित सदस्यों, आप सबों को नमस्कार। मैं सभी लोगों की बात में सुना और आप लोगों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए। देखिए, ये विभाग जो है, इस पर विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की रुचि है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अपने देश में फूड प्रोसेसिंग का जो मामला है वो आगे बढ़े। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी को कम किया जाए, लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी मिले, इसके तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी उपस्थित सदस्यों, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं इस चर्चा के आयोजन के लिए एसोचैम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। श्री अनिल राजपूत जी ने कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क हो। आप सभी जानते हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने में फूड प्रोसेसिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत का फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। उम्मीद है कि वर्ष 25-26 तक यह उद्योग 535 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन रहा है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 मिलियन महिलाओं के साथ 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। फोटो नहीं आ रहा करता और भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 12.8% योगदान दे रहा है। भारतीय खाद्य और किराना बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें खुदरा बिक्री में 70% का योगदान है। भारतीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग देश के कुल खाद्य बाजार का 32% हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और उत्पादन, खपत, निर्यात और अपेक्षित वृद्धि के मामले में 5वें स्थान पर है। भारत में बागवानी फसलों का उत्पादन दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में रिकॉर्ड 320.48 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया था। भारत में लगभग 535.78 मिलियन पशुधन की सबसे बड़ी आबादी है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 31% है। देश में दूध के उत्पादन में वित्त वर्ष 2020 की अपेक्षा में 2021 में 10% की वृद्धि की उम्मीद है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। यह उद्योग लगभग 40,000 पंजीकृत इकाइयों में करीब 1.93 मिलियन लोगों को जोड़ता है, जिसकी निश्चित पूंजी 32.85 मिलियन है और कुल उत्पादन लगभग 158.60 मिलियन का है। भारत का फूड प्रोसेसिंग का वर्तमान समग्र स्तर केवल 10% ही है। 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट रूट के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग उद्योग में 100% विदेशी निवेशों की अनुमति दी है। इस क्षेत्र में अप्रैल 2000 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान लगभग 7.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। कोविड-19 संकट के कारण फूड प्रोसेसिंग उद्योग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की कमी, आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना, कारखानों का बंद होना और सामग्री का भारी नुकसान होना फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए बुरा समय साबित हुआ। लेकिन इसके विपरीत महामारी ने देश में खाद्य सुरक्षा और खाद्य अधिशेष के प्रबंधन के महत्व को बढ़ावा दिया है। नीतिगत उपायों के कारण आजीविका से ध्यान हटकर प्रशासन, वितरण और विपणन पर केंद्रित हो गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र
अम्ब्रेला स्कीम है, जो 6,000 करोड़ रुपया परिव्यय के साथ वर्ष 2016 से लेकर 2020 की अवधि के लिए वर्ष 2017 में अनुमोदित की गई थी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के घटक स्कीमों के तहत 42 मेगा फूड पार्क, 353 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 62 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और 63 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं का निर्माण, 6 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाएं पूरे देश में स्वीकृत की गई है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन, अवसंरचना, मानव संसाधन तथा संस्थान इसके घटक हैं। अगले 5 वर्षों के लिए स्कीम पर विचार करने हेतु प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। मेगा फूड पार्क योजना किसानों को प्रोसेसिंग करने वाले और खुदरा विक्रेताओं को एकजुट करके बाजार से ग्रामीण किसानों को जोड़कर उत्पाद की मूल्य वृद्धि कराता है, अपव्यय और सीमित करता है, किसानों की आय में बढ़ोतरी करता है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करता है। कोल्ड चेन की योजना का लक्ष्य ग्राहक को फार्म गेट से बिना किसी ब्रेक के कोल्ड चेन और आधुनिक कोल्ड स्टोर की सुविधा देना है। इसमें रिफर वैन, मोबाइल कूलिंग इकाइयों के साथ साथ मूल्य प्रबंधन केंद्रों पर प्री कूलिंग सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को और अधिक समर्थन देने के लिए सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्योग योजना की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत किया गया था, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यह देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय वित्त पोषित क्षेत्र की योजना है। पूरे देश के लिए जिले में जिस उत्पाद से संबंधित सूक्ष्म उद्योग अच्छा काम कर रहा है, उन उत्पादकों को केंद्रित करके वहां काम करने वाले सूक्ष्म उद्योग को कच्चे माल खरीद से विपणन तक का सहायता योजना प्रदान द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वयं सहायता समूहों को 7,500 महिलाओं को 7,500 महिला सदस्यों को सीड कैपिटल के तौर पर 40,000 रुपये प्रति महिला को सहायता प्रदान की गई थी। PMFME योजना एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण का पालन करने वाली इकाइयों और समूहों पर जोर देगी। देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा क्लस्टर और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर प्रति जिले में एक उत्पाद की पहचान की गई है। मंत्रालय द्वारा भारत की निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य उत्पादकों में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। भारतीय प्रोसेस फूड प्रोडक्शन विदेश में पूरी पैठ बनाने, निर्यात बढ़ाने तथा उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा को खरा उतरने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। PLI योजना के मुख्य उद्देश्यों में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियन बनाने में सहायता, ग्लोबल BTGT और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापक स्वीकृति के लिए चुनिंदा भारतीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना, गैर कृषि नौकरियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कृषि उपज के लाभकारी मूल्य और किसान की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत टॉप से ये 3 उत्पाद आलू, प्याज और टमाटर की जगह अब टोटल 22 उत्पादों को शामिल किया गया है। इससे अन्य फल सब्जियों के प्रसंस्करण को अधिक बढ़ावा मिलेगा। इन पहलों के साथ हमें यकीन है और फूड प्रोसेसिंग उद्योग निश्चित रूप से विस्तार करेगा और इस क्षेत्र में निवेश की वृद्धि होगी। श्री अनिल राजपूत जी, श्री ओम बी त्यागी जी, श्री हिमांशु प्रियदर्शी जी और श्री विवेक चंद्रा जी ने जो अपना विचार रखा है, मैं उनके विचार से सहमत हूँ और मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग विभाग को, हमारे मंत्रालय को इसकी लिखित जो है सूचना हमारे पास भेजिए और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि फूड प्रोसेसिंग विभाग जो है इसमें अधिक से अधिक
आवंटन मिले, इस विभाग को मिले और अधिक रुचि रख करके विभाग का हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं इस महत्वपूर्ण सत्र के आयोजन के लिए एसोचैम को पुनः बधाई देता हूं और हमें उम्मीद है इस आयोजन के दौरान विचार विमर्श से निकलने वाले सुझाव फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा। आप सबों को मेरी अधिक असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। आपके ये जो शब्द हैं ये हमें प्रोत्साहित करते हैं। आपके ये जो शब्द हैं ये हमको बहुत सपोर्ट देते हैं। और हम लोग जो है आपने पूरे जो अपने स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो बताए हैं, गर्व होता है कि कितने समूह, कितने कैटेगरीज में प्रयास हो रहा है भारत सरकार का इस सेक्टर को बढ़ाने का, लोगों को रोजगार देने का, अब नेशनल इनकम बढ़ाने का। सुनकर बहुत गर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको आपको हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जो आपने अभी सुझाव दिया है एसोचैम के माध्यम से, हम मंत्रालय के साथ में, आपके साथ में बात करेंगे। ये सारी जितनी स्कीम है, ये जो छोटी छोटी हमारी और जो कुछ बड़ी जो हमारी जो गुजारिश है, अगर वो सुनी जाए तो और भी ज्यादा ग्रोथ और जल्दी हो सकती है। और जैसा आपने कहा कि ये सेक्टर बहुत बढ़िया, आपने कहा कि किसान को ग्राहक से जोड़ता है और ये एक इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, एक इंजन है रोजगार का, और जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। और इसमें हम लोग जो भी योगदान कर सकते हैं तो एक तरह से ये राष्ट्र निर्माण का है और हमें इस सेक्टर में जुड़कर हमें बहुत गर्व होता है। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप यहाँ पर हमारे साथ आए इस बहुत ही अहम सेशन में, आपने सुना पूरे वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक बाकी हमारे सारे जितने भी पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एसोचैम और जो ऑर्गेनाइजर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग दिस सेशन।